So my PPT is visible to you all? Yes, ma'am. Okay. So this is the last topic of this subject actually, which is command line arguments. So command line arguments, if you all have worked with the command prompt, so we can also execute our C file through the command prompt. We can call it, we can edit it, okay? So in fact, in systems, Unix-based systems or Linux and other systems, like maybe Fedora or Ubuntu, if you are using that, so in those systems, we compile our program using command line, right? So suppose I've written some hello.c is the name of the uh, whole C program. Okay, so I've created this program named hello.c. Okay, uh, and then I'm writing something over here. I write main and I write something like this. Now main is also a function. And what does it returns? We write it returns zero or return null or whatever over here. But in main also there is possibility that we can give some arguments over here. Okay. So those arguments are passed through command line. So main functions take some parameters just as any other function. So every function you specify. So if generally you write void main void, right? So void main void means it's not giving anything and it's not taking anything as input, right? So, so this void main void is nothing. It's just telling you that you are not passing anything to the main function and it is not returning anything, right? It's returning void and it is taking also void. And then in last you write return. Okay, so you don't specify what it is returning. So whatever the parameters this function would be having, these parameters can be given by command line arguments. Okay. So command line arguments are given after the name of the program in the command line shell of operating system. So we will see how we execute those arguments. Now to pass the command line arguments, we define main with the two arguments. So in C, you have two arguments in place of void. You write two arguments. What are those? We will see. First argument is the number of command line arguments and second is the list of command line arguments. So first is argc and second is argv. GC is the count how many parameters you are going to give as input in this. Okay. Let's see. So first is argc and second is argv. What is this actually? Suppose I want to compile hello.c. So I will write, suppose my compiler name is gcc hello.c hello.c, and in command line I want to give three strings as input. So or maybe I want to give my name is Apeksha. Okay, so my name is Apeksha, so four parameters are there, right? So argc will store four, 1 2 3 4 number of arguments you are giving inside the main. So gc is the count. Okay, and argv is the pointer to pointers. What pointers? This first string. This is a pointer. This is a pointer. This is a pointer. Hello is a pointer, or my name is a picture. So my name is Apeksha. Okay. So this my is also a string. So this is also a pointer. Okay. Name is also will be stored in a character pointer. This will also be stored in a character pointer or maybe an array. Okay. So this will also be stored in a character pointer. And argv is a pointer to these pointers. Okay, so it will store the addresses of all these strings. So for address of my, address of this, address of is, and address of this. So argv will store all the values that we pass in the command line argument. In argc will store the count, how many arguments you are passing after hello.c. That is in the function main, how many arguments you want to pass. Okay, so simple. So this is the end. It stores the number of command line arguments. So if we pass a value of RGC would be 2. Now in this case, 1 2 3 4, we have passed 4 things, but ARGC will give 5. It will give one more than
the number of arguments you pass, because it also considers this as first. So actually it takes 5 arguments. If I'm giving it 4, it will argc will show you 5. If you print argc over here in this main, after main you write printf argc, it will give you 5. Okay. Argv is an array of character pointers listing all the arguments that you passed in the main. Okay, so this is clear, everyone? Ma'am, Yes, ma'am, ARGC is just a variable. both are variables, argc and argv. Ma'am, like ARGV is a pointer to pointer, na? Yes, So, ma'am, ARGC is just simple integer. yes. And ma'am, also, is it necessary for us to give character in ARGV? No, you can give int. But Ma'am, but A- ARGV will store the address of it. ARGV will consider it as as a character. If you write hello.c 1, comma 2, 1, 2, and 3, okay. So 1, 2, 3 are integers, but it will take 1, 2, 3 as strings. Okay, it will take it as strings. मैम लाइक ARGV का रोल यही है ना कि मतलब जैसे मुझे कमांड लाइन से पास करना है 50 और मुझे एक वेरिएबल प्रोग्राम में रखना है कि काउंट, मतलब हाँ, काउंट मैंने मेन में रखा है और मुझे कमांड लाइन से पास करना है 50। तो मैम काउंट ARGV के मतलब काउंट इज अ वेरिएबल पास्ड इनसाइड ARGV। आपको यहाँ पे वेरिएबल पास करना है। नहीं मैम, मतलब ARGV स्टोर क्या कर रहा है, वेरिएबल स्टोर कर रहा है या वैल्यू स्टोर कर रहा है? एड्रेसेस स्टोर कर रहा है इन सारी स्ट्रिंग्स के, माई का, नेम का, इसका और अपेक्षा का। माई का एड्रेस स्टोर कर रहा है, नेम का एड्रेस स्टोर कर रहा है, इसका स्टोर कर रहा है और अपेक्षा का स्टोर कर रहा है। अब माई और को मैम कैसे, ये आप माई को एड्रेस, स्टोर करवाओ, माई को अगर आप स्टोर करवाओगे तो आप खुद एक कैर स्टार एक्स इज इक्वल्स टू माई ऐसे स्टोर करवाओगे ना आप। अगर आप किसी स्ट्रिंग को यस कैरेक्टर मैम, में स्टोर करवाते हो तो ऐसे ही कराते हो। तो कैर यस स्टार मैम। एक्स, तो एक्स इज हैविंग एड्रेस ऑफ माई, है ना। तो ये जो argv है, दिस विल बी हैविंग एड्रेस ऑफ दिस एक्स। मैम ARGV will have address of my, and what is my means, like my is a variable or my is नो, value? माई इज ए कांस्टेंट। माई नेम जो भी हम कमांड लाइन में पास कर रहे Okay ma'am. And ma'am, we have to use every time, like we have to every time use GCC? नहीं नहीं नहीं, जीसीसी कंपाइलर का नाम है, जीसीसी की जगह नहीं आप मैम, मेरे बोलने का मतलब था मैम, लाइक लाइक एवरी टाइम वी हैव टू कंपाइल इट बिफोर एग्जीक्यूटिंग, लाइक हाँ फॉर एग्जांपल, first time I want my name is Apeksha and second time I want is my name in Harshit. So every time I have to compile. हाँ, बिल्कुल एवरी टाइम यू हैव टू Okay, ma'am. कंपाइल। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay. Okay, so properties of command line arguments. So they are passed to main function. This is clear. They are supplied to the program when it is invoked. Okay, initially. Okay, during the compilation of your program. Now they are used to control program from outside instead of hard coding those values inside the code. ARGC is a null pointer. ARGV 0 holds the, so this I have told you, like if you are passing 4, my name is Apeksha, so you are passing 4 strings. Okay, so ARGC will give you 5. Why 5? First argument, it is taking it as name of the program hello.c. So this is what is written over here. ARGV always stores the name of the program. So ARGV1 points to the first command line argument. So ARGV1 will point to my, ARGV2 will point to name, and ARGV3 will point to is, and Apeksha is ARGV4. Okay. Ma'am, Yes.
मैम जब हम कैरेक्टर की जगह इंटीजर लेंगे तो डबल पॉइंटर की जगह सिंगल पॉइंटर ही आएगा ना? हाँ, तब सिंगल ही आएगा। ओके मैम। ओके, जैसे यहाँ पे आपने कैरेक्टर लिया है, इस वाले एग्जाम्पल में देखो सिंगल लिया है, क्योंकि ARGV खुद जब एरे का जो नाम होता है, जब हम एरे के एलिमेंट्स एक्सेस करते हैं, हम तभी एरे का नाम इज इटसेल्फ अ पॉइंटर, राइट? इफ आई राइट A10 और इफ आई राइट स्टार A, तो इट विल प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, है ना? तो एरे का नाम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर, तो यहाँ पे हमने एक ही स्टार लगाया। ठीक है, चलो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, दिस इज CPP, है ना, C++। तो जब मैं C++ की फाइल को कंपाइल करती हूँ तो आई राइट G++, एंड दिस इज द नेम ऑफ द फाइल example11.cpp -o main। ये क्या है, आई वॉन्ट आउटपुट इन माई मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो हम सी प्रोग्राम कैसे कंपाइल करते हैं? हमारे पास एक प्रोग्राम होता है hello.c या example1.c और cpp whatever C++ की जो फाइल होगी, फिर हम इसको कंपाइल करेंगे, विल कंपाइल दिस, राइट? एंड हम एक कंपाइलर यूज करेंगे, मे बी GCC या G++, JNU, कोई भी कंपाइलर यूज करेंगे। ठीक है, कंपाइल करने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, राइट? तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe के नाम से जनरेट होती है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, कंपाइल होके, सॉरी डॉट, हाँ, कंपाइल होके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, राइट? यही करते हैं। हमारे पास जो GUIs होते हैं उसमें वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, जो फाइल कंपाइल होके फाइनल बनी है, बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड जो बना है ना? तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो कोड बना है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो डॉट बैक स्लैश यूज होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो डॉट बैक स्लैश एंड द नेम, हमने जो आउटपुट हम चाहते थे एग्जाम्पल1 को कंपाइल करने के बाद जो आउटपुट आए वो मेन में आए, है ना? मेन नाम की किसी फाइल में आए, तो अब हम उस मेन नाम की फाइल को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो पहले हम कंपाइल करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट करते टाइम हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे ये दोनों डिफाइन किए हैं, मिंट में वॉइड की जगह हमने बताया है कि इसके पास ARGC भी होगा कुछ और ARGV भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो जब दोनों चीजें होंगी तो हमने यहाँ पे कोडिंग इज फन दे दिया। तो ARGV के अंदर क्या जाएगा, पहले तो नेम ऑफ द फाइल जाएगा, फिर कोडिंग, फिर इज और फिर फन। ठीक है, तो ये 4 आर्ग्यूमेंट जाएंगे और ARGC के अंदर क्या जाएगा, 4 स्टोर होगा। अब अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो क्या आएगा, सी आउट यूज करते हैं आउटपुट के लिए C++ में। तो सी आउट, यू हैव एंटर्ड, यहाँ पे ARGC के अंदर क्या था, 4, सो यू हैव एंटर्ड 4 arguments, okay? Then in next line what it will do is, again आपने ये what it will print is, uh, यहाँ पे ARGC मतलब 0 to 4 तक ये लूप, <4 तक चलेगा, यानी 0 1 2 3, है ना? 4 बार ये लूप चलेगा। एंड व्हाट इट विल प्रिंट इज, पहला इसने ARGV आई प्रिंट किया है, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रोग्राम का नाम .\main, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वाज दैट, सेकंड कोडिंग, थर्ड इज एंड फन। ठीक है, चारों मैम आर्ग्यूमेंट। यस। मैम ये 4 आर्ग्यूमेंट्स में मेन क्यों शो कर रहा है? इसको तो एग्जाम्पल शो करना चाहिए ना मैम, क्योंकि हमने सी की फाइल का या C++ की फाइल का नाम तो एग्जाम्पल 11 है। हाँ, वो होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज यहाँ पे डॉट बैक स्लैश क्यों लिखा है। मैम क्योंकि नेम हमने चेंज कर दिया ना ऊपर, नेम हमने इसको मेन कर दिया है। मेन कर दिया अब है एग्जीक्यूटेबल फाइल का, हाँ वो तो इसलिए है। मैम, वो इसलिए मैम वो मेन शो कर रहा है ना। हाँ, आउटपुट वी वांट इन मेन। अच्छा, इसको गूगल करो, चेक करो कि हम एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं या ओरिजिनल नाम प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे भी सेकेंड प्रोग्राम में भी व्हाट इट इज प्रिंटिंग इज, जिसमें हमने ARGC.out, जिसमें हमने चेंज किया है, मतलब आउटपुट वाली जो फाइल है जिसमें हमने कंपाइल करके कोड लाया है, वो वाली फाइल प्रिंट करा है ना, ये .\argc.out। एक्चुअली ये क्या ले रहा है, ये वाला जो पूरा जो हमने एग्जीक्यूटेबल के टाइम पे दिया है, इसको एज इट इज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मान रहा है, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको 4th। तो यहाँ पे जो चारों हमने दिए हैं उन चारों को मान रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी
.\args इसको प्रिंट कर रहा है, फिर 1 को प्रिंट कर रहा है, 2 को प्रिंट कर रहा है, 3 को और 4 को रिवर्स ऑर्डर में, है ना। तो जो हमने मैम यहाँ पे, हाँ मैम जैसे इस वाले एग्जाम्पल 12 में हमने ओ के बाद args डॉट आउट मेंशन कर रखा है, और हम्म एग्जाम्पल 11 में हमने बस मेन लिखा हुआ है। डॉट आउट लिखना तो मैम कंपलसरी नहीं होता, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी इट विल वर्क। तो मैम ये अपने आप मतलब डॉट आउट ले लेता है? हाँ ये अपने आप है, क्योंकि कंपाइल करते टाइम क्योंकि आपने कंपाइलर स्पेसिफाई कर दिया ना, और यस -o मैम। मतलब आउटपुट आपको उसमें चाहिए, तो आप वो मतलब ऑप्शनल होता है इसमें। ओके मैम। जैसे हम सी में हम क्या करते हैं, हम कोई न्यू फाइल बनाते हैं और हम उसे सेव करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डॉट सी में सेव होती है, इस तरह का है कि वो ऑटोमेटिकली उसको डॉट आउट में ही लेगा। मैम और अगर जैसे हमें मतलब कुछ करना हुआ, हमें मतलब एक्सपेरिमेंट करने हुए, और हमने ओ के बाद मेन डॉट कुछ और एक्सटेंशन दे दिया, डॉट आउट नहीं दिया, और लाइक हम्म डॉट कुछ और दे दिया, तो मैम हाँ, फिर क्या होएगा मतलब? तो आप बताओ क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे .\/ करके जो एग्जीक्यूट करने वाली कमांड है, ये तो सी को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, सी फाइल को एग्जीक्यूट कर पाएगा .\/ करके। अगर उससे रिलेटेड मैम आपके सी पास को थोड़ी, एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है ना मैम। एग्जीक्यूटेबल फाइल को कर पाएगा, एग्जैक्टली है ना। तो अगर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल, जैसे आपने कुछ ऐसा दे दिया, मान लो पाइथन दे दिया py, तो py इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, यस मैम। है ना, तो वो उसे एग्जीक्यूट कैसे करेगा, तो एरर आएगी मैम ना। तो मतलब जैसे मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, और मैंने अभी लिख दिया जैसे जीसीसी एग्जाम्पल 11 डॉट सी ओ मेन डॉट ई एच सी ए हम्म, मेन डॉट आउट। तो मैम ये मैंने कंपाइल तो करा है विंडोज पे, पर क्योंकि मैंने आउट आउट लिखा है और वो यूनिट्स का है, तो मैम यूनिट्स पे काम करेगा वो, एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूट होएगा वो, ऐसा? करके देखो, एग्जीक्यूट करके देखो। मैम आज अभी तो फोन से अटेंड कर रहा हूँ, बाद में करता हूँ। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट है? और मैम जो कमांड लाइन आर्गुमेंट है वो नेम प्रिंट करता है, लाइक, तो और हमने वहाँ पे नेम उसका मेन कर दिया, दैट्स वाई वो मेन प्रिंट कर रहा था। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वो मेन यहाँ से नहीं ले रहा है, ये जो सेकेंड लाइन में हम जितने भी पैरामीटर्स दे रहे हैं वो सारे प्रिंट कर रहा है एक्चुअली वो। यस मैम, मैम यहाँ पे हमने जो डॉट स्लैश मेन लिखा है वो प्रिंट कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस क्लास इज डन, आपका सिलेबस इज कंप्लीटेड। अब इसके बाद फ्यू